This is the second lecture of geometry. First lecture, we did all the corresponding angle, alternate angles, and the transversal line will intersect the two parallel lines. And based on that, we have done all the questions, right? पॉलीगन पर भी क्वेश्चन थी See, if three sides are given and just forming a triangle. So different types of triangles are possible. Obviously, we have already proved that the sum of these three angles is 180 degree, right? And this angle ACD is equal to angle A plus angle B. Or you can say this is 180 degree minus angle C. This is called exterior angle. Right. Note down, please. And already seen if n-sided polygon is given, the sum of the interior angle is n minus 2 into 180 degree, and sum of the exterior angle is 2 into 180 degree, right? So these are the basic terminology. I hope all you understand this. Done, everyone? So if isosceles triangle is given, we know that in isosceles triangle, two of the sides are equal. Maybe these sides are, if is equals to AC, so the angle B and C must be equal. Angle B is equal to angle of, right? In all the sides are equal and the angles are also equal. All the angles are sitting and all the sides AB, BC, and CA will be equal. Right? Similarly, in right angle triangle, you know that this angle is 90 degree, A, B, and C. So AC square is equals to AB square plus BC square. Right, these are the simple facts. I hope all you know this. If you're knowing this, that's good. If not, okay, no problem. You can note down this one. Done, everyone? Okay, these are the simple things.
right? So Arya and Bihan, just we have started beta. First we did this Yes, sir. exterior angle and the formula of angle ACD. Exterior angle formula is angle this ACD angle. This angle is equals to this angle plus this angle, right? Yes. First and second, right? Isosceles triangle, if these two sides are same, so angle will be equal. For equilateral triangle, all the three angles will be equal and the sides also. And in right angle triangle, just we would. Okay. But the application part, right? Starting with the application part of this. So just I'm putting the question. You have to draw the diagram. Every time you have to draw the diagram in the geometry. The basic, the first, always we have to draw now, right? So we have to draw the diagram, then only we can, then we have to proceed for questions, right? Say, triangle ABC and ADC. Sir, question. Yes, beta. Isosceles with AB is equal to BC and AD is equal to DC. Point D is inside the triangle ABC. Angle ABC equals to 40 degree and angle ADC is equal to 140 degree. Find angle BAD. Angle BAD, right? To prove it or fine. Find BAD. First, We have to prove it also. what prove beta? What you want to prove? So now I am asking what is that. Your voice is cracking. You have to find angle BAD. That's it. Huh? Okay. Very simple question. Only you have to draw the diagram, right? You can write down your answer in chat. Very good. Jays. BAD. Very good. BAD. Very good. Very good. Done everyone? So अभी तक आ गए 4-5 लोगों के आंसर आए हैं अनफॉर्चुनेटली आगे समझिए होगे क्या बोलूंगा अनफॉर्चुनेटली विहान ट्राई तो कर बेटा फिगर तो बना आर्या पुरंजय Yes, sir. एवरीवन Sir, 2 minutes.
हिमाया, वेरी गुड संजय, हिमाया, तो डायग्राम गलत बना दिया। good, 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 good. See, so first this is given ABC, isosceles triangle. I guess yes, this is isosceles triangle ABC, and D is the point. Right, D is this one. Right, A, B, C, and this is the point D. This and this both are equal. If this angle is given as 40 degree and this angle is given as 140, we know that this angle and this angle must be सर ABC 40 डिग्री गिवन है। right. ABC ना तो सर B से नहीं कनेक्ट होगा, A से कनेक्ट होगा। हाँ सर ADC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हाँ, तो ADC A होना चाहिए, D होना चाहिए। केवल हाँ, ठीक है बेटा। तो ABC मेरा 40 डिग्री है। ABC अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी मेरा 40 डिग्री हो जाएगा। 80, तो ये एंगल मेरा कितना होगा? 80, अच्छा 100। 100 डिग्री। 100 डिग्री, राइट। एंड क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दूसरी चीज भी मेरे को दिया हुआ है, AD एंड DC दोनों इक्वल गिवन है, राइट। सर बी पे 40 डिग्री है ना क्वेश्चन सर, लिखो मतलब बेटा। सर ए की जगह बी होगा ना? क्यों? बी पे दिया हुआ है मैंने, कहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन सर में? ए बी और बी सी इक्वल बोला है ना, ए बी और ए सी नहीं। ABC एंगल दिया हुआ है मेरे को 40 डिग्री, ठीक है। और ओके। गिवन है AB इज इक्वल टू, अच्छा AB इज इक्वल टू BC। हाँ सर वही मैं बोल रहा था, ए की जगह बी होना चाहिए और बी की जगह ए होना चाहिए, तो इसलिए वो गलत है। ही चेंज हो जाएगा तब ना, ये हमारे पास जो एंगल है यही चेंज हो जाएंगे। क्या क्या है, यहाँ ऊपर कर लेता हूँ तब आसानी से आपको दिखाई देगा, राइट। ये हमारे पास है, B पॉइंट यहाँ पर है, A पॉइंट यहाँ पर है, C यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा चेंजेस ला दो, आराम से क्वेश्चन पे आ जाएगा, राइट। और हमारे को गिवन क्या है, राइट, ABC ये 40 डिग्री गिवन है, ठीक। अगर ये 40 डिग्री गिवन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। अगर ये 40 है तो टोटल दोनों का सम क्या होगा? अगर मान लो ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा एंगल होगा, तो अल्फा एंगल प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 इज 140 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आई होप सभी का सही है, अल्फा की यस। वैल्यू 70 डिग्री। सिमिलरली मेरे को गिवन है ADC 140 डिग्री गिवन है, ये 140 और ये भी आइसोसेलेस है। ये एंगल मेरे को कितना मिल रहा है? 20 डिग्री। ये भी एंगल कितना मिल रहा है मेरे को? 20 डिग्री। तो टोटल मेरे पास ये क्या आएगा? ये टोटल था मेरे पास BAD, ये एंगल निकालने, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल BAD इज नथिंग बट 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज 50 डिग्री। चेक करो एक बार, यस। ओके एवरीवन, ठीक है। सिया, आर्या, इज दिस ओके? आपने वो BAD कैसे निकाला, फिर से बताओगे? BAD आपको क्या क्या निकल गया बेटा? लास्ट अल्फा पे कौन सा एंगल तो निकल? 70 निकल गया। अल्फा का मतलब ये एंगल निकल गया आपको, ठीक है, एक एंगल। हाँ सर निकल गया। ये एंगल आपको 20 डिग्री निकल गया, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये एंगल आएगा, है आपको ये ओके एंगल सर। निकल गया, राइट। और आपको ये एंगल भी दिया हुआ है, इसको अगर ये टोटल एंगल से माइनस करूंगा तो ये एंगल निकलेगा ना, हाँ सर। वही लिखा हमने,
Okay, sir. ठीक है. Now, second one. So please careful, right? The trisection of trisector of angle B and C of scalene. Scalene triangle क्या होता है? Scalene triangle क्या होता है? अनइक्वल All the साइड. side are unequal. Meet at point P and Q. राइट, अभी फिगर में दिखा दूंगा आपको. एंगल A is given as 39 degree and angle QBP is given as 14 degree. Find angle BPC. Find angle BPC. The figure of this is A, B, C, Q, and P. And this is your question. Take your time. सर ट्राइसेक्टर मतलब ट्राई का मतलब 3, सेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स. ट्राई सेक्टर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ट्राई सेक्शन. बाई सेक्शन, बाई मतलब 2, सेक्शन 1 मीन्स कटिंग. तो बाई सेक्शन मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स, राइट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देखना आज थोड़ा सा लास्ट टाइम से क्वेश्चंस ऊपर बढ़ जाएगा ना, थोड़ा हर दिन एक आगे बढ़ता जाएगा. अमोघ बहुत स्लो हो रहा है बेटा, तुम्हारा आंसर अभी तक आना चाहिए. यस सर, सर ट्राई कर. नहीं दिख रहा मेरे को ट्राई करता हुआ. वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छे बेटा. जील, वेरी गुड बेटा. जयेश, वेरी गुड. अमृतराज, वेरी गुड. वेरी गुड. प्रसम, वेरी गुड. प्रसम वेरी फास्ट बेटा, बहुत अच्छे. So this is again a simple question. In this question, the trisection of angle B and C. Angle A is given, angle QBP. This angle is given, and this is 14. So this is 14, this is 14, this is 14. So complete this angle will be 14 into 3. Right? So this is coming as 42 degree. And angle A is given as 39 degree. Right? So I can find this angle as 180 degree minus 42 degree minus 39 degree. Right? This is angle ACB. Right? So this angle ACB is 479 degree. Right? So I can say कि one of the angle, because dividing in the 3 equal part, so this will be 33 degree. And this was only 14 degree.
फिर right? मेरे सर को भी पहले ये आया था, मैं फिर बहुत बार रीचेक किया कि वो 99 डिग्री लग नहीं रहा। हाँ, सर हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यूबीपी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट था, क्यूबीपी के वैल्यू के बिना भी हो जाता है ये। यूबीपी नहीं रहता तो ये पूरा एंगल कैसे निकलता बेटा? फोर्टी सर टू इसकी जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि हमें पीबीसी और पीसीबी के सम की वैल्यू मिल जाती। चेक करो एक बार, जो बोल रहे हो उसको चेक करो, समझ में आ जाएगा क्या बोल, कहाँ पर गड़बड़ है। -14 -30, नहीं तो ये क्या आ गया टोटल? 130। राइट, ओके। सर हम्म। सर एक्चुअली नेटवर्क इशू था ना, तो इसलिए मैं लीव हो गई थी, तो आप एक बार फिर से समझाओगे क्या? हाँ, ये एंगल मेरे को गिवन था, ये एंगल मेरे को 14 डिग्री गिवन था, राइट? और बोल रहा है ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये टोटल जो होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ये हो गया 42 डिग्री, इज दिस ओके? यस सर। ये गिवन है 39 डिग्री, तो ये पूरा एंगल मैं निकाल सकता हूँ, वो क्या आएगा? 180, राइट? ये पूरा का पूरा 180 -42 -39 डिग्री, ये आएगा, हाँ सर। राइट? तो ये आ गया 99, राइट? ये 99 डिग्री आ यस गई सर। ना। अब 99 डिग्री और ये तीनों 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर एक टोटल एंगल 99 हो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने, तो कितना कितना एंगल आना चाहिए? ऑल 3? 33। 33, तो ये 33 आ गया। अब देखो, अब सोचो इस बारे में ना, ये जो ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो दो बेस वैल्यूज आपके पास गिवन है, दो बेस वाले, देख लो, ये 14 डिग्री गिवन है और ये गिवन है मेरा 33 डिग्री, राइट? तो क्या ये एंगल कैसे निकालोगे? सर दोनों को सम करके 180 से माइनस कर दें। वेरी गुड। तो 180 से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो वही मेरे पास आ गया 133। ओके, ओके सर। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके एवरीवन, सो गोइंग इनटू नेक्स्ट, ABCD be a quadrilateral with AB is equal to BC is equal to CD, and angle B मेरे पास गिवन है 100 डिग्री, एंड एंगल C मेरे पास गिवन है 130 डिग्री। फाइंड एंगल A माइनस एंगल D। ड्रॉ द फिगर। मेरी पूरी कोशिश ये चल रही है कि आप फिगर ड्रॉ करें ना, वो हमारे पास काम कर जाए, बहुत सारी चीजें वर्क कर जाएगी। प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास।
फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो। चार साइड है मीन्स क्वाड, क्वाड मीन्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। जीरो का मतलब हो जाएगा कि वो कोलिनियर हो रहे, मतलब दोनों। हाँ, या फिर मेरा ये स्क्वायर बन रहा है। दोनों ही चीजें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि एंगल जो मेरे पास गिवन है वो कुछ अच्छे से नहीं दिख रहे, नहीं, क्योंकि वो उसमें 90-90 होना चाहिए तो स्क्वायर बने या रेक्टेंगल कुछ वैसा बने था, नहीं। तो वो तो गिवन लग नहीं रहा है, तो शायद वो दिक्कत होगी। थोड़ा और देखो, ये बार चेक करो। मैं स्टार्ट। सर 2 मिनट। माया, सिया, फॉलो करना बेटा ध्यान से, कहीं दिक्कत हो तब पूछते भी जाएंगे। सर मेरे को माइनस में आंसर आ गया। अच्छा, माइनस में आ रहा है। ए मतलब ए और डी में से आप बोल रहे हो कि ए छोटा हो जा रहा है, डी बड़ा हो जा रहा है। क्या आ रहा है माइनस में बेटा? सर 50 -50। बस 50। एक बार मेरे को सॉल्यूशन आप भेज सकते हो, या तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मैं स्टार्ट करूं क्या? नहीं सर। वाह, बस एक 1 मिनट। आंसर आया यार, दो लोगों का आंसर तो, और दोनों का एक जैसा, एक ही आंसर। वाह, वेरी गुड। विजय, अमोक, गुड, वेरी गुड। सर। हम्म, कैसे किया एंगल चेंज करके? हाँ सर, थोड़ा जुगाड़ कर करके एंगल निकल गया। अरे बाप रे बाप, इंडिया में अब कहाँ जुगाड़ चलता है, बांग्लादेश में जुगाड़ चलता है। इंडिया में अब प्रॉपर तरीके से काम हम लोग करते हैं बेटा, नहीं। इंडिया सही। तो अमीर कंट्री है भाई, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग आराम से, हम लोग प्रॉपर तरीका हमारे पास है हर चीज का। हाँ, प्राउड टू बी एन इंडियन। हाँ, चलो स्टार्ट करें। डन एवरीवन, देख लो, शुरू करें। हो गया सबका? कुछ ऐसा गिवन हमारे पास, यही है मेरा ए बी सी डी, राइट। गिवन है मेरे को क्या क्या, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये सी है ना, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये आ रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
सर ये बी पता चला, सर BC डायगोनल थोड़ी। ये तो दिया हुआ है ना इसमें। सर बीसी डायगोनल का है। हाँ सर बीसी सर डायगोनल में BC डायगोनल गिवन नहीं था। और ये भी कहाँ गिवन था कि नहीं है। सर बीसी तो नॉर्मल साइड तो क्वाड्रिलैटरल को एबीसीडी बोला है ना, तो बीसी डायगोनल। डीसी है ये, एबीडीसी, एबीडीसी। हाँ ये चीज सर और फिर तब एक भी मिनट दे आप, सकता? और तब भी अरे तब भी भगवान। आंसर निकाल दिया आपने, वाह सही है यार। सर 1 मिनट फिर देना, एक सवाल। चलिए सर आप शायद जुगाड़ नहीं लगा। हाँ, देखें। सिंपल अरेंजमेंट है। जयेश वेरी गुड। ट्राई अगेन। सर डन। उसका मुझे ए माइनस डी चाहिए। हाँ, वेरी गुड जेल। अनुष्का एक बार चेक करो बेटा। अमित राज होना था बेटा, टाइम अधिक लग रहा है। चेक चेक चेक। आंसर सही है यार। सही है क्या? हाँ सबसे सही। सर आंसर सही है क्या? आंसर आपने भेजा है, एक बार भेजो बेटा। सर भेज दिया। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अनुष्का वेरी गुड। विजय चेक अगेन। पुरंजय वेरी गुड। तो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। ओह, अरे यार ये चैट किधर गया। 10 डिग्री वैल्यू फाइनली आफ्टर मच। फाइनली आया, फाइनली आया। इसे मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा, ये भी अल्फा है। ये एंगल होगा 180 माइनस 12। इसे मैंने कर दिया बीटा, ये भी बीटा है। ये होगा 180 माइनस 2 बीटा, राइट। बी की वैल्यू मेरे को गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। बी का मतलब हो गया 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू गिवन है 130 डिग्री। सिमिलरली सर 100 डिग्रीज।
100 दिया हुआ है, हाँ बी की वैल्यू 100 है। 100 है, और सी मेरे पास है अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, इसकी वैल्यू दी हुई है 130। यही दोनों सॉल्व करने हैं ना। तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 80 डिग्री आ रही है, और इधर आ रहा है अल्फा माइनस 2 बीटा की वैल्यू, या 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ 50 डिग्री। मुझे क्या चाहिए था? तो ये ऐड करके फिर टू हाँ माइ वो ऐड कर दो। 3/8 हाँ डिवाइड बाय 3 कर। हाँ, मतलब अल्फा बीटा क्यों निकालूं, दोनों को सीधा ऐड करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो अल्फा माइनस बीटा वैल्यू आ गई 10 डिग्री, नहीं राइट। बट क्वेश्चन का मैंने जैसे कहा ना, एक एक करके, और कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल से, मैं केवल आपको नजर आ जाए उसी का काम चल रहा है बस। हाँ, क्वेश्चन आएगा, मतलब थोड़ा सा और है हमारे पास। एक ये फर्स्ट सर क्वेश्चन में ऊपर आपको देने दिखाओ जा। बेटा। हाँ बेटा, आर्या बोलो। सर 1 मिनट ऊपर दिखाओ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, जो जेन्युइनली जिस तरह के क्वेश्चन आपको करना चाहिए वो आएगा। हाँ, सो थोड़ा सा अपनी वर्किंग के लिए तैयार रहें। हाँ, हो गया बेटा? आर्या डन? कैमरा ऑन करो बेटा। आर्या, यस सर। सर नेटवर्क इशू है एक्चुअली ओके थोड़ा। बेटा। सिया, किमाया, कुरुंजय, सर नेटवर्क इश्यू है। अरे कोई नेटवर्क क्या, हम लोग शहर में रहते हैं, क्या नेटवर्क इशू होगा? कोशिश करो। हाँ, उससे बहुत कुछ पता चलता है। सर गाँव में आया है। अच्छा, गांव में आई है क्या? कौन सा गांव है बेटा? सर रत्नागिरी में है। अच्छा, सर रत्नागिरी से। रत्नागिरी में है। अच्छा, देखो सर दापोली। दो लोग रत्नागिरी में, दोनों मिल लो। ABC be a triangle with AB is equal to AC, and let K and M be points on the side AB, and L a point on the side AC, such that BC is equal to CM is equal to ML is equal to LK is equal to KA, right? फाइंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपका सबसे जरूरी चीज होगा एक प्यारा सा डायग्राम बनाना। लेट ABC be a triangle with AB is equal to AC, and let K and M be points on the side AB, and L is the point on the side AC, such that BC is equal to CM is equal to ML is equal to LK is equal to K. Then you have to find angle A.
स्टार्ट करूं क्या? फिगर सबसे जरूरी, जो मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बहुत अच्छा ज्योमेट्री में आपको कंस्ट्रक्शन रहे, अच्छा डायग्राम आंसर की गारंटी। अच्छा डायग्राम आंसर की 110% गारंटी। काट लें। Okay, let's see. So, the question is given, right? ABC triangle, AB and like two sides are equal. AB and सर 1 मिनट ऊपर जा सकता हूँ? नो सर। हाँ बेटा, एक ये थे। वाह, यस। मुझे लगता हो गया। नुस्खा, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मिनट सर, बस हो रहा है। हो रहा है, अच्छा चलो, न दिया 2 मिनट दिया। टेक योर टाइम एवरीवन, 2 to 3 minutes you have. सर इज इट करेक्ट? सर आंसर सही है क्या? देखिए। सर आंसर बराबर है क्या? जय, इसका तो आंसर कुछ खतरनाक आ गया। 60 60 60 60 60। एंगल ए इज, एंगल ए निकालना था ना? हाँ सर। एंगल ए, चलो गुड ट्राई, गुड ट्राई। सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी हमारे लिए ये है कि ट्राई होना चाहिए, नहीं? तो ए बी सी कुछ ऐसा ही है गिवन। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब 2 पॉइंट यहाँ गिवन है मेरे को। कौन कौन से पॉइंट थे ए बी में? कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? ई एम एंड यहाँ पर एल।
ऐसा, एंड ज्वाइन कर देता हूं पहले तो। यहां तक तो सबको सही है। राइट, अब मेरे को क्या क्या गिवन है वो भी हम देख लें। BC, BC जो है वो CM के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। राइट, ML और LK ये दोनों इक्वल है, मतलब सभी इक्वल हैं, और ये भी इक्वल, एक ही, ऑल आर इक्वल। ठीक, और मुझे निकालना ए एंगल है। यहां तक में कोई दिक्कत या डाउट? नो सर। राइट, ये मेरे पास गिवन है ना। एंगल ऑब्वियसली मुझे नहीं मालूम, तो इसी को मैं ले लेता हूं अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो के एल, ये एंगल के एल ए एंगल क्या होगा? सर अल्फा। अल्फा। राइट, अगर ये दोनों अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा? तो टू अल्फा। अल्फा। टू अल्फा। एक्सटीरियर एंगल याद है ना, अभी बात हुआ था। अगर ये टू अल्फा है तो LMK एंगल क्या होगा? टू अल्फा। तो 2 अल्फा। वेरी गुड, ये भी आ गया मेरा 2 अल्फा। ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा? और 4 अल्फा। 90 -4 अल्फा 180 माइनस टू अल्फा। ना, 1। तो उसके साइड वाला 4 अल्फा हो जाएगा। अब ये एंगल मेरे को चाहिए, एक तो ये वाला एंगल चाहिए, ये दोनों एंगल मेरे को चाहिए, और ये एंगल चाहिए, या तो जो पास है। सर MLC होगा वो 3 अल्फा होगा। तो अब ये एंगल मेरा कितना होगा, बता सकता है कोई? सर 3 अल्फा। और सर 3 अल्फा है, मैं गलती से 4 अल्फा लिख। हाँ, ये आ गया 3 अल्फा। ये एंगल, ये 3 अल्फा सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ये यस। एंगल भी हो गया 3 अल्फा, ये हो गया 180 -6 अल्फा। राइट, तो तो इधर उधर 4 अल्फा हो जाएगा। वेरी गुड, सब के सब है मेरे पास। राइट, ये दोनों 4 अल्फा ना। ठीक है, सब के सब एंगल मेरे पास अपने आप में दिखाई दे रहे हैं कि क्या क्या एंगल्स होने चाहिए। अब ये दोनों 4 अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा। हम्म, सर ये अल्फा ही हो जाएगा ना, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है। AB और AC इक्वल, ये पूरा एंगल हो जाएगा ना, AB और हाँ, AC तो के लिए फिर वो सिर्फ अल्फा हो जाएगा। लिखा हो गया। ठीक है, सर वो अब अल्फा कैसे हुआ? फिर तो टोटल में 9 अल्फा 180 डिग्री, तो अल्फा 20 डिग्री। बड़ा सिंपल सा नहीं आ गया? कौन सा बेटा, कौन सा? सर जो वो सी वाला अभी आपने किया वो। ये AB का लेंथ जो है और AC का लेंथ इक्वल है, इससे क्या समझ में आता है कि सर ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए। आता है ये? ओके सर, गॉट इट। ठीक है ना, ये मेरा 4 अल्फा गिवन है, ये 3 अल्फा मेरे को आ गया, तो ये अल्फा ही होना चाहिए मेरे पास ना। तो बस की हाँ जी। जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप में ही ये निकल गया है। तो मेरे पास ये आ गया 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री। वेरी गुड। क्या अभी तो सही तो निकाला बेटा, फिर यहाँ आंसर में क्या गड़बड़ कर दिया? सर वो मैंने पहले, क्योंकि वो जो 3 अल्फा था उसको 4 अल्फा निकाल दिया, ओ ओ ओ ओ क्योंकि वो मैं भूल गया कि वो उधर भी अल्फा है, तो फिर। ओ ठीक। और सेम गलती मैंने नीचे की थी फिर। अच्छा, नोट डाउन एवरीवन, नोट डाउन। ये मतलब समझ गया ना, कुछ भी खास नहीं था, बस इतने सारे इंफॉर्मेशन को हैंडल करना कैसे है वही हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। सर हम्म, मुझे वो आपको 3 अल्फा कैसा है समझा नहीं, मुझे क्या समझे तो वापस। एकदम बता वो सकते। 3 अल्फा। यहाँ पर देखो, ये एंगल अल्फा है, ये समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ? हाँ हाँ सर। यहाँ पर फिर से करता हूँ, ये एंगल अल्फा है, ये ठीक है।
ये एंगल भी समझ में आ गया था, ये है 180 माइनस 4 अल्फा। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो इस पूरे का सम क्या होगा? 180। 180। राइट, तो अब अगर वो 180 है तो मेरे लिए तो बहुत आसान काम हो गई ना। तो ये अगर मैं बीटा ले लेता तो बीटा प्लस अल्फा प्लस 180 माइनस 4 अल्फा जो है वो 180 होना चाहिए था। बीटा आ गया। आई होप मैं उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करवा पा रहा हूं कि आप थोड़ा सा अटेंटिव होना शुरू कर दें और दिखाई देना शुरू हो जाए। दिख गया तो हमारे लिए काम बन जाएगा। राइट। सर हमें कैसे समझेगा कि ऐसा ही डायग्राम बनाया है? लाइक मैंने कैसे? अलग। क्या थोड़ा सा दिखा सकते हो? दिखाओ मेरे को, दिख पाएगा मेरे को? हाँ सर। दिख पाएगा मेरे को? एक बार दिखा सकते हो मेरे को डायग्राम? सर मैंने कुछ ऐसा बनाया था, एक मिनट। कैमरा। ए बी सी एल एल या बिल्कुल सही बनाया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको वो जो आपने मीट करवा दिया ना एम को मीट करवाया सी से, इसमें भी काम बन जाता आपका, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ओके सर। हाँ, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही बना हुआ है डायग्राम। राइट। गड़बड़ वहां पर वो हो रही है ना, आपने जो डायग्राम बनाया उसमें मेजरमेंट जब मेरे को, एक ये भी तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब इक्वल होने चाहिए ये वाले पूरे। जब ये पूरे इक्वल होने चाहिए तो आपके डायग्राम में ये चीज नहीं दिख रहा है, हमें केवल उसको थोड़ा सा फिक्स करना ओके सर। होगा। नेक्स्ट। ओके एवरीवन, ये ठीक है? कोई कुछ पूछना चाहोगे और भी? नहीं। नेक्स्ट वन। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए is 60 degree, angle B is 45 degree, right, respectively. The bisector of angle A intersect BC at T and AT is equal to 24, right? सर साइड का लेंथ है। AT is equal to 24. Find area of triangle ABC. थोड़ा सा सोचे तो थोड़ा और लग किया मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एकदम सबसे जरूरी चीज, फिर से वही मैं बोलूंगा, नीट डायग्राम आंसर की गारंटी ना। डायग्राम बनाना आपको सीखना है, इसलिए बार बार मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। नीट डायग्राम, नीट डायग्राम, नीट डायग्राम।
ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा इसमें? थोड़ा सा जी ट्रिग्नोमेट्री बेटा, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा। उतना ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जानते हो, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। सभी ने देखा हुआ है ना, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। हाँ सर। वेरी गुड। अरे वाह अनुष्का, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे टाइम में बड़े अच्छे से निकाला आपने, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये दिल मांगे मोर और आना चाहिए। वेरी गुड। सिमिलरिटी से भी हो सकता था, सिमिलरिटी अभी पढ़ा नहीं है हमने, आगे चल के पढ़ेंगे तो सिमिलरिटी से भी अच्छा यूज हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से भी हो सकता है, राइट, कोसाइन रूल या साइनाइन रूल से भी हो सकता है, बहुत सारे वर्किंग हो जाए। मैं स्टार्ट करूं? सर दो। सर 2 मिनट सर, बस हो ही रहा है। ओके ओके, टेक योर टाइम। सर यहाँ आंसर भेज दिया। ध्यान, फिगर बनाया बेटा, वेरी गुड जयेश, बहुत अच्छा फिगर। यस सर। ध्यान दिखा सर बेटा। सर आंसर सही है क्या? वेरी गुड। सर आंसर सही है क्या मेरा? बोला रे, हाँ हाँ। ध्यान, फिगर दिखा बेटा। दूर करेगा तब नहीं दिख रहा है, दूर कर थोड़ा सा। क्या सर? दूर करेगा तब दिखेगा, नहीं दिखा। ओके, शुड आई स्टार्ट? क्या मैं स्टार्ट करूं? यस सर। सर एक मिनट बस। एक मिनट, चलो चलो।
ए बी सी मेरे को गिवन है, राइट, यहाँ पर ए बी सी, राइट, एंगल दो मेरे पास गिवन है। कौन कौन से एंगल मेरे को गिवन है? सर A60 और B45। वेरी गुड, ये दो तो मेरे पास हैं 60 एंड 45। ए का एंगल है 60 डिग्री, बी का एंगल है 45 डिग्री। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता, ये 90 हो गया, ये एंगल हो जाता 30, हाँ सर। ये 90 हो जाता तो ये एंगल हो जाता 45। ये भी सही है। अब क्या बोलता है, 80 क्या था? द बाइसेक्टर ऑफ ए का बाइसेक्टर जो होगा वो कहीं पर कट गया, तो बाइसेक्टर होने का मतलब है कि ये एंगल हो गई मेरे लिए 30 डिग्री, ये भी एंगल मेरी 30 डिग्री है। यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, राइट। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना एंगल होगा? 60 डिग्री। वेरी गुड। अगर ये मेरा, राइट, तो ये 45 हो। हाँ सर। 80, इसी की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास? 20, 24। 20, राइट। अब होगी बात खत्म, कैसे कैसे, राइट। सर ट्रिग्नोमेट्री में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हाँ। रेशियो की जगह। हाँ, बस ये मेरा टी ई दिया हुआ है और एटी की वैल्यू मेरे पास है 24। याद होगा, आई होप सभी को याद होगा ही। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मतलब हुआ टी ई अपॉन 80। तो एंड साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। वेरी गुड, साइन 60 डिग्री अगर यहाँ करता तो वो क्या आ जाता? ए ई अपॉन 80, राइट। टी ई की वैल्यू भी निकल गई, ए ई की वैल्यू भी निकल गई। इसमें कोई दिक्कत या डाउट? इसमें किसी को दिक्कत या डाउट? फिर एरिया कैसे निकालोगे इसको? हाँ, मैं निकालता हूँ ना। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आते जा रहे हैं उसको देखते हैं ना। सबसे पहले मैं ए ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 12√3। 12/3, ठीक है। ये और मेरे ई भी आ जाता है 12। और ए ई आ गया मेरे पास, तो क्या मैं यहाँ से जो मेरे पास ए ई जो हमारे पास है, एक ये मेरे पास आ रहा है, दूसरा मतलब कोई ऐसा लेंथ निकाल लूं जिसमें मेरा काम बन जाए, जैसे सीडी का लेंथ निकाल सकता हूँ क्या? सर ई भी निकाल सकते। ईबी निकाल सकता हूँ, तो ईबी का लेंथ क्या आ गया? 12। 12, 12 आ गया सर। राइट। सो ये 12, अगर ठीक है, तो ये 12 मेरे पास है ना, तो ये वाला लेंथ भी मेरे पास 12 है। बट मतलब ईबी का लेंथ से मेरे को बहुत फायदा तो होगा नहीं। मेरे को चाहिए कौन सा लेंथ, उस पर ध्यान दो। मेरे को चाहिए अगर मैं सीडी का लेंथ निकाल पा रहा हूँ, या एडी का लेंथ निकाल पा रहा हूँ, या एसी का लेंथ निकाल पा रहा हूँ, तब मेरे लिए काम बनेगा। सर ए बी आपने CD पहले से परपेंडिकुलर बनाया हुआ है ना, तो AB का लेंथ निकाल सकते हो आप उसके थ्रू। EB का लेंथ हमने गिवन है, A का लेंथ हमने अभी निकाला। हमारे पास 3-4 तरीके हो सकते हैं यहाँ तक पहुंचने, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 60 + 45 105 है, और वहाँ 75 बनता है एंगल ATC, और एंगल ACT भी 75 है। तो दोनों एंगल सेम है, तो दोनों साइड भी सेम है, तो AT और AC इक्वल हो जाएंगे। नॉट बैड। अगर मैं इसका लेंथ को x ले लूं, DE का लेंथ जो हमने कहा, तो उसको अगर मैं x ले लेता हूं, तो ACD ट्रायंगल जो है, ACD ट्रायंगल में ये लेंथ जो हमारे पास है, CD जो हमारे पास आ रहा है, क्या मैं CD का लेंथ बता सकता हूं? क्योंकि AE आपने ये लिया हुआ है, राइट। तो AD, AD आपके पास क्या आ जाएगा? 12 3 -x आ जाएगा AD, हाँ सर। राइट। CD का लेंथ क्या था, अभी निकाला था हमने? CD का लेंथ क्या आ जाएगा? तो सीडी का नहीं निकालना। CD, क्या CD का निकाल सकते हैं हम लोग लेंथ?
CD का लेंथ, ध्यान से देखो, आपको एकदम सामने दिख रहा है CD का लेंथ। रुको मैं इसमें फिगर बना के दिखाता हूँ तो और आपको अच्छे से दिखेगा। CD का लेंथ कहाँ से लेना है वो दिखा रहा हूँ आप। ट्रायंगल दिख रहा है जो मैंने बनाया है? हाँ सर। वो 12 प्लस एक्स। हाँ, डायरेक्ट दिखा ना, वेरी गुड। तो CD का लेंथ है 12 प्लस एक्स या माइनस एक्स? CD तो 12 प्लस एक्स है। 12 मेरे पास किसका लेंथ आया था 12? EB तो पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो फिर 12 प्लस एक्स है। ये मेरे पास था 24, ठीक है। मेरे पास लेंथ में 80 का लेंथ, मेरे पास 24 ये लेंथ है, ठीक। और मेरे को AB का लेंथ, राइट, AB का लेंथ वो उस फॉर्मेशन में चाहिए जिसपे हमारा काम बन पाए। तो AB का लेंथ क्या मैं निकाल सकता हूँ? फिर AB हो गया 12√3 प्लस 12। EB का लेंथ कैसे निकालेंगे? हमारे पास सर A और EB। इसे देखना ना, ये ट्रायंगल दिख, सॉरी, ये ट्रायंगल एक दिखाता हूँ आपको। 80 के साथ बनता हूँ, राइट। ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें लेंथ इसका 24 है, ये 90 है, ये 60 डिग्री है। तो AE का लेंथ क्या हो जाएगा 12। ना, जो हमारे पास है 12√3 ना, 12√3 ये लेंथ आ गया। एंड TE का लेंथ क्या होगा? किसका लेंथ है? ये वाला लेंथ, ET का 12। राइट, ये भी 12 है, राइट। सो ऑब्वियसली ये भी 12 था मेरे पास, ये ये 90, भी 12। ये 45 है ना। ये वाला यस। कितना, इसकी जरूरत वैसे है नहीं, क्यों निकालें, नहीं, 90 है तो ये 12 आ गया, राइट। तो यस। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेरे पास क्या आएगा? 12 DB, प्लस एक्स। DB का लेंथ क्या आएगा 12 प्लस एक्स, हाँ। राइट। DB का लेंथ आ गया 12 प्लस एक्स। तो CD भी 12 प्लस एक्स होगा। तो CD का लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 प्लस एक्स। राइट। CD का लेंथ आ गया 12 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये सब यस। इसका लेंथ हमने निकाल दिया ना। अब CD का लेंथ भी हमारे पास आ गया, एंड ये पूरे के पूरे वर्किंग आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, CD का लेंथ एक तरफ से यहाँ दिया हुआ है। क्या मैं CD का लेंथ AE का जो लेंथ दिया हुआ है उसके, या AD का लेंथ दिया हुआ है उससे मैं निकाल सकता हूँ? कोई भी एक को पकड़ के, जैसे DE का लेंथ 12 प्लस एक्स है, राइट। एंड हमारे पास जो आ चुका है लेंथ वो है AD का लेंथ, राइट। AD का लेंथ जो मेरे पास है वो क्या है 12√3 माइनस एक्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यस एंगल 60 दिया हुआ है, ये 12√3 माइनस एक्स है। क्या मैं CD का लेंथ एक बार और निकाल सकता हूँ इसके टर्म में? सर, इस हाँ सर। पूरी चीज को √3 से मल्टीप्लाई। गुड, वो एंगल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CD बाई tan ले लेता हूँ ना, तो आपको सीधा का सीधा एक बार में आ ही जाएगा ना। tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CD बाई AD, राइट। तो CD मेरे को निकालना है AD, राइट। तो CD की वैल्यू आ गई AD इंटू tan 60 की वैल्यू √3। AD का वैल्यू क्या है 12√3 माइनस एक्स। इंटू √3, तो 36 माइनस √3 एक्स। राइट।
ठीक है, दोनों CD इक्वल होंगे जो भी आप निकाले हो। तो क्या आया, 36 माइनस √3x इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स तो x की वैल्यू निकल 24 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, √3 प्लस राइट। सर फिर इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज किया इसको। तो आपके पास अब रैशनलाइज x की वैल्यू निकल गई, मतलब CD की वैल्यू आपके पास है और AB की वैल्यू आपके पास है। कैसे एरिया निकाल, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हाफ। हाँ तो वर्किंग पूरा आपको करना पड़ेगा। सर मैंने थोड़ा अलग फिगर बनाया क्योंकि अच्छा, क्या किया बताओ। सर पहले तो सर मैंने 80 को सर मैंने A को ऊपर रखा, बट मैंने ये प्रूव किया कि 80 AC के बराबर है, क्योंकि जो है AC 80 AC के बराबर है, क्योंकि एंगल C 75 डिग्री है और एंगल क्या गया 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 क्या गया, आवाज कट रही है बेटा आपकी, ये जल्दी से नोट कर लें प्लीज, भी 75 डिग्री। जल्दी से नोट कर लें प्लीज, या मैं रुको शेयर कर दूंगा इसे ना, थोड़ा सा एक चीज को मैं आगे बढ़ा दूं, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ना हमेशा जरूरी होता है ना। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, ये दो टर्मोलॉजी है जिस पर हम लोगों को बहुत अधिक काम करना है, जो है सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, राइट। दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। किसी ट्रायंगल के लिए अगर आप बात कर रहे हो, ये बहुत पावरफुल टूल होता है जिसमें हम लोग को काम करना होता है। सिमिलरिटी का मतलब होता है दो ट्रायंगल मैंने लिया, एक ये ट्रायंगल है, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूं, इसी को मैंने डुप्लीकेट किया, लेकिन इसको इनलार्ज कर दे, राइट, या इसको छोटा कर देता, राइट। अगर ऐसा कुछ मैं कर पा रहा हूं कि दोनों ट्रायंगल जो हैं उनके एंगल्स प्रोपोर्शन तो दोनों के सेम सेम आ रहे हैं, बट साइड्स के लेंथ में भी सेम में भी डिफरेंट हो जाए। जैसे अगर ये ABC है, राइट, ये DEF है, तो एंगल A जो है एंगल D के इक्वल, एंगल B है वो एंगल E के इक्वल, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल। ये तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे। साइड्स यहां पर बोला जाता है कि सेम रेशियो में होंगे। AB D के बराबर, BC EF के बराबर, मतलब रेशियो में, एंड AC का रेशियो DF के। तो यहां पर जब रेशियो सेम होते हैं तो ये केस चल रहा है आपको सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल इस तरह के हों जिनके एंगल्स जो आ रहे हैं, राइट, एंगल्स जो आ रहे हैं वो सेम हों, बट जो इनके लेंथ, साइड्स ऑफ लेंथ जो दिए हुए हैं वो सेम प्रपोर्शन में हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, राइट। लेकिन यहां तक ठीक है सबको, लेकिन यहीं पर जब दूसरी बात मैं करूं कि दो ट्रायंगल मैंने, इसमें केस क्या है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सेम टू सेम, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सेम टू सेम होंगे। सेम मतलब इनका एंगल ABC भी सेम है और साइड्स के लेंथ भी जो हैं वो भी सेम टू सेम, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो इसको कॉन्ग्रुएंस, राइट, दो ट्रायंगल अलग अलग करते हुए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, राइट। सेम हो, दोनों ट्रायंगल सेम होगा, इसके प्रोपोर्शन सेम नहीं है, राइट। सो अब ये दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार आपको चेक करना पड़ेगा दोनों सेम होंगे। तो इनके लिए कुछ टेक्निक हमारे पास होता है कि केवल
कितना मिनिमम कंडीशन हो जिसको देख के मैं बोलूं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या दोनों सिमिलर है। दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर है। सिमिलर का क्या मतलब है? सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सिमिलर के लिए? एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, बट साइड्स जो हैं उनके रेशियोज हैं, राइट। बट जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस के, उसके लिए क्या होना चाहिए? सर एंगल्स और साइड्स दोनों सेम होने चाहिए। सेम ही सेम होना चाहिए, मतलब दोनों सेम हो, दोनों ट्रायंगल सेम हो, तभी उसको कॉन्ग्रुएंट का नाम दिया जाता है, राइट। अब उसमें आपको ये जरूरी नहीं कि बार बार ये चेक करना पड़ेगी, तीनों साइड चेक करो, तीनों एंगल चेक करो। तो मिनिमम कितने इंफॉर्मेशन आपके पास रहे जिससे आप बोल सकते हो कि ये दोनों सिमिलर हैं या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। मिनिमम कितने आपके पास दिए रहे इंफॉर्मेशन जिससे आप बोल सकते हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या ये दोनों सिमिलर हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसको एस एस एस, एस ए एस वगैरह वगैरह नाम से बोला जाता है। एस 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 मतलब साइड साइड साइड, तीनों साइड हैं, राइट। उनको केवल चेक करो आप, वो तीनों साइड अगर इक्वल आ रहे हैं या इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहे हैं तब आपका इंफॉर्मेशन आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से। अमोघ, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो सबसे पहला इसमें अलग अलग जो मैंने कहा कि रहेंगे आपके पास। फर्स्ट होता है एस एस एस। एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड। तो अगर मैं बोलूं कि दो ट्रायंगल मेरे पास हैं, दोनों बातें हो सकती है, सिमिलर भी हो सकता है, और दूसरा यहां पर जब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ ए बी सी है मेरे पास और ये है डी ई एफ, अगर ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, अगर ये गिवन है, इक्वल नहीं गिवन है, रेशियोज में गिवन है, तब बोलूंगा मैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों जो हैं ये सिमिलर, राइट। राइट, अगर रेशियोज मेरे हैं किससे, तो एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 से ये सिमिलर है। लेकिन यहीं पर इसी केस में मैं सेकंड केस अगर कहूं कि जब मैंने जो ए बी सी लिया था, एंड जो मैंने डी एफ लेने जा रहा हूं, इन दोनों में हमने कहा कि एस 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 से ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अगर ये तीनों मेरे पास हो जा रहे हैं तो हम एस 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 से दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास पहले सिमिलर के लिए आ रहा था वही अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल, इज दिस ओके? दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है क्या? हाँ बेटा, एक ही बात है ना, दोनों के रेशियो इसमें भी सेम ही तो है ना, 1 1 1 आ जाएंगे उस समय, नहीं? सर बट सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है सर? सिमिलर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें चाहिए होगा कि सबके रेशियो 1 हो जा रहे हैं ना, स्पेशल केस हो जाए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट अगर है वो तो सिमिलरिटी के साथ में है ही है। ओके सर। फर्स्ट, ओके एवरीवन, ठीक है? ये आप लोग को एकदम याद होना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहली चीज यही रहेगी। सेकंड है एस ए एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस ए एस? एस का मतलब होता है साइड, साइड एंगल साइड।
फिर एंगल, फिर साइड। लेकिन इसमें ना ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। साइड एंगल साइड का मतलब ये है कि अगर आपने मान लो एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, राइट। अब यहां पर आप बोल रहे हो कि दो हमारे पास गिवन है, राइट। सो इन साइड ये एंगल देन साइड, ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ए बी के साथ में हमने लिया तो उसके बीच का एंगल, ए बी और ए सी के बीच का एंगल को लेना है। ये नहीं कर सकते आप कि ए बी और ए सी लिया और एंगल यहाँ का ले लिया, गलत हो जाएगा, राइट। तो आपका ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता साइड साइड एंगल, उसका मतलब होता साइड साइड फिर एंगल आ रहा है। ये ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि साइड एंगल साइड, बी ए बी का या ए बी का साइड लिया, देन बी ए सी का एंगल लिया, देन ए सी का साइड लिया। ये है ठीक है, राइट। अब इसमें भी दोनों चीजें हो सकती है, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। सिमिलर होने के लिए क्या होगा, रेशियो जो साइड हमारे पास है उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, लेकिन कॉन्ग्रेंट होने के लिए उसको इक्वल होना चाहिए। इज दिस ओके? ये सेकंड है। ये क्या सबको सही है, क्लियर है? हाँ सर। थर्ड, थर्ड होता है ए ए ए। लेकिन ए ए ए जब आप रखोगे तो इसमें कॉन्ग्रेंसी नहीं रहती, ये सिमिलरिटी का केस होता है। या फिर इसमें ए ए भी बोला जाए तब भी सेम है, क्योंकि थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया। नहीं, ये तीन एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं कोई भी एक ये बनाया और इसी को मैंने थोड़ा इनलार्ज करते हुए बनाया, राइट। तो दो एंगल भी अगर मैं ले रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, राइट, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहां पर कॉन्ग्रेंट की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एंगल से मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि वो कॉन्ग्रेंट होगा या नहीं होगा, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकता? साइड का लेंथ इक्वल नहीं हो सकता ना बेटा, होगा तब के लिए तो एक स्पेशल केस हो गया ना। ओके सर। ओके, ठीक है, हो गया। फोर्थ, फोर्थ फोर्थ केस यहां पर ये हो जाता है, राइट। जब हम लोग ये कॉन्ग्रेंट का केस है, ये जैसे सिमिलर का केस था ना ए ए ए, वैसे ही यहां पर कॉन्ग्रेंसी का केस होता है ए एस ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एस ए? सर एंगल साइड एंगल। राइट। तो दो एंगल मेरे पास गिवन है, राइट। एंड ध्यान दो, दो एंगल और उसी के बीच के साइड की बात हो रही है। दो एंगल गिवन है और उसी के साइड के, उसी के बीच के साइड के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर अगर ऐसा केस रहेगा तो लेंथ दोनों का मैंने अगर बोला ये सेम है, दिस एंड दिस, बी सी एंड डी ई, तो मुझे इक्वल ही बोलना पड़ेगा। तो बी सी इज इक्वल टू डी ई है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है केवल इतने इंफॉर्मेशन से बी और सी इक्वल है तो ए भी अपने आप इक्वल हो जाएगा, राइट। और एफ के जो भी हमारे पास है तो अपने आप ये तीनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ए एस ए से कॉन्ग्रेंसी आती है, राइट। ये कॉन्ग्रेंट का केस है, ये याद रखना। सर ए से सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी में आती है। हम्म, ओ, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में क्यों नहीं आती? सिमिलर तो हो ही गया ना बेटा, कॉन्ग्रेंस का मतलब हो गया कि दोनों इक्वल हो गए ना। तो ओ सिमिलर हाँ। उसको बोलना भी नहीं ठीक रहेगा ना, कि वन ही लेंथ है तो कॉन्ग्रेंट ही बोलिए ना। सी हमारे पास ये आ ही गया कि दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो सिमिलर तो अपने आप आ रहा है उसमें,
ना, और उसकी जरूरत भी नहीं है मेरे को। सिमिलरिटी तो इसलिए यूज किया जाता है कि मेरे को प्रपोर्शनेट दोनों का सेम हो जाए, सेम प्रपोर्शन में। फिफ्थ, राइट, एस ए, जब भी साइड का लेंथ आपने इक्वेट कर दिया, मतलब साफ है कि आपने यहां पर ये बोल दिया कि दोनों कॉन्ग्रेंट के लिए जा रहे हैं। ये एस का क्या मतलब हुआ? साइड एंगल एंगल। अभी मैंने बात कर ली थी कि अगर ये दोनों एंगल मेरे सेम है तो अपने आप ये एंगल सेम हो गया, तो ये ऊपर वाला ही केस नहीं हो गया? ये ऊपर वाला ही केस नहीं हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया था अगर दो एंगल मेरे सेम हो रहे हैं तो 100% तीसरा भी सेम हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम तो 180 डिग्री होता है। सर फिर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलैटरल क्यों बेटा? अगर मान लो एक एंगल ये दे दिया 30 डिग्री, ये दे दिया 70 डिग्री, नहीं तो 80 डिग्री होगा, और साइड का लेंथ दे दिया। ओके सर। ठीक है। एंड द स्पेशल वन, ये बहुत अच्छे से यूज होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी की बात कर रहा हूं, एंड सेम मैं डी ई एफ की बात कर रहा हूं, राइट। अगर मैंने दोनों के हाइपोटेनियस को सेम बोल दिया तो मैं 100% बोलूंगा कि और सब के सब चीजें भी हमारे साथ में सेम ऑर्डर में होगी ना। बोला ये जाता है टू राइट एंगल आर congruent if they have a congruent hypotenuse and base। बेस मतलब जो ये दिया, राइट। अब इसमें भी हुआ क्या, अगर ध्यान से सोचोगे तो अगर आप देखो तो ये जो है 4 ये दे दिया, मैंने 5 दे दिया, दिखाने के लिए 4 5 दे दिया, 4 ही 5 नहीं होगा। ये एंगल आपको जो होगा वो और ये एंगल जो होगा दोनों सेम आ गए, फिर तो वही बात। और ये दोनों एंगल मेरे पास गिवन है, फिर तो वही वाली बात हो गई मेरे पास, राइट। यस बेटा, जब भी साइड का लेंथ इक्वेट हो गया मतलब वो बात हो रही है कॉन्ग्रेंट ना पर्सन। ओके, ये 6 केसेस हैं आपके पास। मैं अभी इसको शेयर भी आप लोग को कर दे रहा हूं, आपको इसके नोट्स अच्छे से बना लेने हैं, राइट। एंड कहीं पर भी इसको ऐसा नहीं होने देना कि याद ना रहे, क्योंकि इसी पर बेस हम लोग नेक्स्ट स्टार्टिंग होगी हमारी पूरी कहानी। हाँ, और इस पर हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि इनको कहाँ यूज होता है, कैसे दिखाई देता है, उसमें हम कंफर्टेबल हो जाए। हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर हम इन चीजों को बड़े अच्छे से पकड़ पाते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था पैरेलल लाइंस के लिए, वही चीजों को हमें फिर से आगे बढ़ाना है। ठीक है, ओके हाँ एवरी, सर। सर मैंने आपको 2 क्वेश्चन चाहिए था, वो बता दो। अभी करते हैं बेटा Thanks for ना। 2 मिनट का टाइम लो आप लोग। देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को भेज रहा हूँ, एक बार उसमें हाय समथिंग लिखना, जस्ट अ मिनट में।